Hello students, today we are going to continue with our next topic of the solution, that is vapor pressure. First we are going to define what is the meaning of vapor pressure. Remember this one, the vapor pressure is applied for the liquid which is volatile in nature. Okay, so remember this, liquid which is volatile. Volatile means जो लिक्विड इज वॉलेटाइल मीन्स व्हाट, कि जो गैसियस फॉर्म में भी ट्रांसफ़र होता रहे और वापस गैसियस में से लिक्विड स्टेट में आता रहे. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? सो वेपर प्रेशर मीन्स the partial pressure which is exerted by any vapor or gas on the surface of liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium condition, that is called as vapor pressure. Suppose in one container कोई भी सॉल्यूशन लिया है, एज वी नो दैट इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, तो क्लोज कंटेनर होता है. बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपन, यहाँ हमने कंटेनर में ये जो लिक्विड भरा है, सपोज ये वॉलेटाइल लिक्विड है, तो क्या होता रहेगा, इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द गैसियस स्टेट. ओके, ये जो है उसका गैसियस स्टेट है. And then again from the gaseous state it try to convert into the liquid state. This process is continuously occur, and that's why that stage which is arrived where the formation of liquid and gaseous molecule is equal, that is known as equilibrium condition. Okay, now we are going to discuss about the factors. Okay, so we are going to discuss about the factors affecting vapor pressure. शॉर्ट में लिखूंगी मैं अब VP. Okay, the factors which is affecting vapor pressure, the first factor, that is temperature. Okay, so as we have discussed, in closed container, suppose I have taken one liquid. Okay, now from below side if we are going to apply heat to this liquid, okay, तो हमें पता है ये ऑलरेडी वॉलेटाइल है. अब इसको अगर हम गर्म करेंगे मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, देन more number of liquid molecules start converting into the gaseous state. Okay, so due to that what exactly happen, gaseous state में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, मीन्स यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ऑन द लिक्विड surface. Okay, so remember this one, if we increase the temperature, then vapor pressure on surface of liquid is also going to increases. Clear? So this is the first factor. Now second factor, that is nature of liquid. Nature of liquid means, in this one, if liquid with intermolecular force of attraction which is weaker, then as it can be easily converted into the gaseous state. Okay, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. So if liquid with the weak intermolecular force of attraction, then vapor pressure is more. Clear? क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे लिक्विड में, उनके बॉन्ड्स जो होंगे, दे आर नॉट टाइटली बॉन्डेड विद ईच अदर. ओके, तो फिर क्या होगा, वो इजीली थोड़ा भी टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में भी क्या होगा, कहीं लिक्विड का टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर होता है. ओके,
सो यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो तुरंत ही बॉन्ड ब्रेक कर करके किस स्टेट में आने लगेंगे, गैसियस स्टेट में आने लगेंगे. ओके, सो if the liquid with the weak intermolecular force of attraction, then vapor pressure is more. Okay, and opposite of this one. Okay, if intermolecular force of attraction is high, then obviously the vapor pressure is going to be less compared to this one, क्योंकि वो बॉन्ड इतने टाइट है between the molecules so that it cannot convert into the gaseous state easily. ओके, यहाँ लिक्विड में से गैसियस स्टेट में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, सो वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी लेस कंपेयर टू दिस वन. ओके, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज गोइंग टू बी ईथर एंड अल्कोहल. ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल ईथर वाला ले ले. सपोज CH3OCH3 एंड अल्कोहल का एग्जाम्पल ले ले हम इथेनॉल. ओके, ये है एग्जाम्पल है मिथॉक्सी मीथेन का और ये है इथेनॉल का. एज यू कैन सी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा. ओके, यहाँ पे C2 है, H6 है बराबर, NO1 है, यहाँ पे भी C2 है, H6 है, 2 and 1, दिस वन इज ऑल्सो काउंटेड, एंड ऑक्सीजन इज 1. ओके, दोनों का फॉर्मूला सेम है कि C2H6O, बट यहाँ पे वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा. सो रिमेंबर दिस वन, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस ईथर इज हाई. ओके, सो वेपर प्रेशर ऑफ ether is high and this one is having a low vapor pressure. The reason is that कि यहाँ पे क्या होता है, जो ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बराबर. अब सॉल्यूशन लिया है सपोज दोनों का, अब सॉल्यूशन लिया है तो हमें पता है कि सॉल्यूशन में एक एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ अल्कोहल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. ओके, एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, इट कैन नॉट वेपराइज इजीली बिकॉज ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और यहाँ पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद द कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ होता है. ओके, सो ये क्या करेगा, अगर दूसरा CH3OH है तो उसका OH का H और ये O ऐसे बॉन्ड बनाएंगे. ओके, सो हेयर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड ड्यू टू दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द alcohol is less compared to the ether. Okay, so this is the second factor. Now we are going to discuss about the third factor, that is boiling point. Boiling point का हमें मीनिंग तो पता है, the temperature at which substance start boiling. Okay, अब boiling point में क्या होगा कि जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा बराबर, अगर हम उसको हीट करेंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है. नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होगा, मोर एंड मोर नंबर ऑफ एटम्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस स्टेट. ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट में एक ही पॉइंट बनता है कि द लिक्विड विच हैव lower boiling point having higher vapor pressure. Okay, clear. Next point, fourth factor, purity of liquid. प्योरिटी ऑफ लिक्विड, इसमें हम बात करेंगे प्योर सॉल्यूशन की और सॉल्यूट की एंड सॉल्यूशन की बात करेंगे. ओके, अब प्योर लिक्विड होगा
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हायर ही होगा कंपेयर टू द सॉल्यूशन। ओके, हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमने 2 कंटेनर लिए, क्लोज कंटेनर लेंगे बिकॉज रिमेंबर कि जो हम लिक्विड ले रहे दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर। ओके, फर्स्ट कंटेनर में हमें प्योर लिक्विड भरा एंड सेकेंड कंटेनर में हमने सॉल्यूशन भरा। ओके, इसको प्योर सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। लिया फर्स्ट कंटेनर में, इसमें हमने सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन कब बनता है हमें पता है कि जब हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को भी मिक्स करेंगे उसमें। ओके, ये जो प्योर सॉल्यूट है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इनका नाम दे दिया हमें सपोज ए मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने सॉल्यूट लिया ए प्लस सॉल्वेंट को हमने नाम दिया बी। ओके, अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा मैं क्या करूँगी, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है उसको डार्क कर देते। ओके, क्लियर। नाउ इन दिस वन व्हाट एग्जैक्टली हैपन, ये जो प्योर सॉल्यूट है बराबर, एज यू कैन सी उसके जो लिक्विड का सरफेस है वहाँ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया बराबर, तो क्या होगा, सरफेस के ऊपर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ए टाइप के मॉलिक्यूल एवन दिस वन इज सपोज बी टाइप मॉलिक्यूल, दोनों प्रेजेंट है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली द रेट ऑफ द वेपराइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स विल बी फॉर्म्ड मोर कंपेयर टू दिस वन। ये जो हमने सॉल्वेंट लिया वो भी वॉलेटाइल ही है, रिमेंबर दिस वन, बट वी आर कंपेयरिंग दैट कि प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट में क्या होगा, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो सारे के सारे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल यहाँ वेपर फॉर्म में होंगे। ओके, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स किसके भी आ जाएंगे, सॉल्वेंट के भी आ जाएंगे। ओके, सो प्योरिटी ऑफ लिक्विड मीन्स यहाँ पे हमें क्या पता चला, इफ द प्योर लिक्विड है हमारे पास, तो प्योर लिक्विड ऑलवेज हैविंग हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, now next one. Based on this one, we are going to learn about the one law which is very very important, that is Raoult's law. So we are going to start with this law. So in this law as such we are going to discuss the thing which we have discussed in this factor, that is purity of the liquid. Okay, यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें याद रखना जो हमने सॉल्यूट लिया है वो भी वॉलेटाइल है, मीन्स वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट, एंड वो दोनों मिला के हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। ओके, उसकी बात करेंगे। पहले तो हम राउट्स लॉ का मीनिंग पढ़ेंगे। ओके, वो कहना क्या चाहता है, तो उसका स्टेटमेंट है कि फॉर एनी वॉलेटाइल substance or solution substance, the partial pressure exerted by vapor or
gas on the surface of liquid or solution is directly proportional to its mole fraction in liquid or solution. ओके, सो क्या कहना चाहते हैं, फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस, सपोज हमने जो कंटेनर में लिया है सब्सटेंस बराबर, अब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, वहाँ पे जो प्रेशर अराइज हुआ उसको उसने बोल दिया पार्शियल प्रेशर. ओके, सो द पार्शियल प्रेशर कंटेनर में हमने लिया, क्लोज कंटेनर में लिक्विड, वो वॉलेटाइल है, यहाँ पे क्या होगा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाइड हुआ उसको बोल दिया पार्शियल प्रेशर. अब ये जो प्रेशर partial pressure exerted on the liquid surface is directly proportional to its mole fraction, okay, which is represented by x. Okay, so now we are going to derive the formula based on this one. अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन द Law's law with the example.